Hello student, welcome to Originative Science. So today we are going to discuss NCERT class 7th chapter number 8, that is wind, storms and cyclones. So you all are very familiar with the wind, storms, है ना, you must have heard about it, and cyclone also, है ना. So you must have heard about the news in TVs and radios about the cyclones. So let's take a look. Orissa was hit by a cyclone with a wind speed of 200 km per hour on 18th October 1999. ठीक है, and the cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people houseless. ठीक है, homeless. And then on October 29, again on the same month, what happens on 29 October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit again Orissa. Then it was accompanied by water waves about 9 meter high, and it was also accompanied by a water wave of 9 meter high. Then thousands of people lost their lives, and it also affect the agriculture, transport, communication and electricity supply. Everything get affected. So the main thing in this is the wind speed. When the wind is blowing with the normal speed, we all like it. Normally we all like it, but when these wind catches a very high speed, these are very destructive. These winds are very destructive. So first of all, the question arises in our mind, that is cyclone. We all know that cyclone is a wind with a very high speed, है ना. So first of all we will discuss about the wind, the properties of the wind. So wind is a moving air, है ना. Moving air is wind. So as we know how the air get generated, how the air, कैसे आपकी जो एयर है वो प्रोड्यूस होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट वी हैव लर्नड अबाउट द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज इन प्रीवियस चैप्टर. So what happens when the sun rays hit the land, the air near the land get heated, and as you know that the warm air is light. So the air rises up, and to take that place, when the warm air will rise up, its place will be vacant, and to fill the place, the cold air come and sink down. Okay, and the same process repeated again. The same process is repeating again and again. What happens, the air near the land is heating up, and that is rising up, and this is creating the pressure difference. Okay, when you have the high pressure, the air with the cold air has a high pressure, okay, and light air has a low pressure. ठीक है, तो this pressure difference is creating the air. When there is the huge difference of pressure, air pressure, it creates the wind or storm. ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट एयर प्रेशर, दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. देन जो एयर है दैट एक्सर्ट प्रेशर, वट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ टिन with a lid, and you have to fill it approximately half with water, and then you have to heat that can with the candle flame. Then you have to leave it for boiling few minutes, and when the water gets boiled, just put the lid over it and hold it tightly. I mean, put the lid tightly on the can. Then be careful in handling it, because the can will be hot. So put the can carefully in the shallow metallic vessel or a wash basin, and then pour fresh water over it, and then you have to pour a fresh water over it. Then see what happens. The shape of the can will get distorted. Why it happens? Why it will happen? So the reason behind it, because as we know, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो it gets converted into water vapor.
ठीक है। तो जो वाटर वेपर होगा इनसाइड द कैन, अगर आप उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दोगे तो जो अंदर का जो टेम्परेचर है दैट विल गो डाउन, और जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएंगे, है ना। तो अंदर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर जो अंदर जनरेट हो रहा है दैट विल डिक्रीज, ठीक है। लेकिन जो प्रेशर है आउटसाइड जो बॉटल के बाहर जो प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा अंदर की तरफ, जहाँ प्रेशर कम है उस तरफ को प्रेशर जब लगेगा तो जो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से जो आपका कैन है उसका जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। दैट विल गेट कंप्रेस्ड, दैट कैन विल गेट कंप्रेस्ड, ओके, एंड इट विल रिजल्ट इन द डिस्टॉर्टेड कैन। Okay, so now we will discuss about that high speed wind are accompanied by reduced air pressure. जो high speed wind है that are accompanied by reduced air pressure, कि मतलब अगर आपके पास high speed wind है तो वहाँ पे हमेशा reduced air pressure भी होगा। So we will अंडरस्टैंड इट विद द एग्जाम्पल। सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल टेक अ बॉटल एंड जस्ट सी इन द पिक्चर, यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस एंड क्रम्बल अ पेपर। आपको एक पेपर को क्रम्बल करना है, ठीक है, मोड़ के, एंड जस्ट कीप इट इन द माउथ ऑफ द बॉटल, देन जस्ट ट्राई टू ब्लो द पेपर इनसाइड। व्हाट विल हैपन व्हेन वी ब्लो into the mouth of the bottle, the air near the mouth has a high speed। जब आप उसको ब्लो कर रहे हो, पेपर को अंदर की तरफ जब आप डालने की कोशिश कर रहे हो तो माउथ के पास जो एयर प्रेशर है वो जो एयर की स्पीड है वो हाई होगी, एंड दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर। इसकी वजह से वहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। बट द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर, बट जो प्रेशर है इनसाइड बॉटल वो ज़्यादा है, और नियर द माउथ क्या है, कम हो जाएगा प्रेशर। तो इसकी वजह से जो अंदर का जो प्रेशर, जब प्रेशर इनसाइड ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, पेपर को बाहर की तरफ पुश करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, हमेशा पेपर को बाहर की तरफ पुश करेगा। अब आप देख रहे हो जहाँ पे हाई स्पीड विंड है वहाँ पे रिड्यूस्ड एयर प्रेशर होगा, क्योंकि जब आप देख रहे हो बॉटल पे जब आप फूंक मार रहे हो पेपर पे तो वहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे विंड की स्पीड ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। लेकिन अंदर क्या है, विंड स्पीड अगर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से जब एयर प्रेशर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, पेपर को बाहर की तरफ पुश करेगा, ओके। द इंक्रीज्ड wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. Air moves from the region where the air pressure is high to the region where the air pressure is low. एयर हमेशा कहाँ को मूव करती है, एयर हमेशा वहाँ को मूव करती है जहाँ एयर प्रेशर हाई होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा एयर मूव करती है। जब ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ही तेज़ आपकी एयर मूव करती है। जितना ज़्यादा एयर प्रेशर होगा उतना ज़्यादा एयर मूव करेगी, ठीक है। अब हमें आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो एयर है वो हीट होने पे एक्सपेंड होती है ना। हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी है कि एयर जब कोई भी चीज़ है, आपका जैसे मेटल है, जब आप उसे हीट करते हो तो हीट करने पे वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जो आपकी एयर है वो भी हीट करने पे एक्सपेंड हो जाती है। सबसे पहले हमने क्या किया, टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज। यू हैव टू टेक 2 पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज एंड हैंग द 2 बैग्स in the inverted position of the 2 ends of the metal of the wooden, or you have to hang these 2 papers, ठीक है। and then take tie a piece of thread। आपको उसको क्या करना है, टाई करना है एक स्टिक के मिडिल में। देन होल्ड द स्टिक बाय द मिडिल एंड यू हैव टू होल्ड द मिडिल। जैसे आपने तराजू देखा है ना, उसके मिडिल में होता है, आपको दोनों साइड क्या करना है, पेपर को हैंग करना है और बीच में आप एक क्या करोगे, थ्रेड से टाई कर लोगे रॉड को और उसे हैंग कर लोगे। देन सी, आपको एक कैंडल, जैसे आप में देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप एक पेपर जैसे ये जो आपने इस तरीके से इसे टाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक पेपर के नीचे आप क्या करोगे, कैंडल आप यहाँ पे बंद करेंगे। जब हम पेपर को नहीं जलाना है, जस्ट जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे, ठीक है, हम वहाँ पे कैंडल फ्लेम देखें। अब आप देखोगे जब यहाँ पे इसके पास जो भी एयर है वो हीट हो रही है,
तो आप देखोगे कि ये क्या हो रहा है, ये वाला जो पेपर बैग है ये हैवी है और ये क्या हो जाएगा आपका, लाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर जब वार्म हो जाती है तो वो लाइट हो जाती है, और लाइट एयर क्या करती है, हमेशा ऊपर उठती है। सो on heating the air expand and occupies more space, it becomes lighter. The warm air is therefore lighter than the cold air. That is the reason the smoke goes up. Okay, इसी वजह, दैट इज़ द ओनली रीज़न द स्मोक गोज अप, क्योंकि जो आपका वार्म एयर है वो लाइट होती है और कोल्ड एयर आपका हैवी होती है। तो लाइट, आपको पता है ना, लाइट जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा ऊपर, जैसे पानी में भी आप देखते हो जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ऊपर तैरती हैं और जो हैवी चीज़ होती है दैट सिंक डाउन। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो आपका स्मोक है वो आपका ऊपर जाता है, क्योंकि दैट इज़ लाइट, दैट इज़ वार्म एयर, जो कि है लाइट है। Okay, so thank you. So rest of the topic we will discuss in our next chapter. If you have any doubt, you can ask me below in my comment section.